इंडिया अलायंस ने जम्मू कश्मीर में किया। जम्मू कश्मीर के वो दृश्य जिसमें भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी अधिकारों, दलितों के अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों का हनन करने का दुस्साहस कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस ने जो किया, एक जागृत भारत उस दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस रेजोल्यूशन को इंडिया अलायंस ने कल पारित किया, उसके अंतर्गत वो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज मैं इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस को, एनसी को देश में किसने दिया? आज मैं कांग्रेस, एनसी और इंडिया अलायंस के सभी नेताओं से पूछना चाहती हूं, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले, क्या कांग्रेस और इंडिया अलायंस आदिवासी समाज के उन अधिकारों के खिलाफ खड़े रहेंगे? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद दलित समाज, पिछड़े समाज को जो अधिकार भारत के संविधान के माध्यम से भारत की संसद ने सुपुर्द किए, क्या कांग्रेस नेत इंडिया अलायंस उनके खिलाफ खड़े रहेंगे? कल का रेजोल्यूशन कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में। यह भारत में हर नागरिक को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद नागरिकों की मृत्यु में 80% की गिरावट हुई। यह हर हिंदुस्तानी को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी हुई। लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय, भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। मैं इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा और जम्मू कश्मीर को भारत से बांटने का उनका ये प्रयास कामयाब नहीं होगा। Today, I stand as an Indian outraged at the attempt by the Congress-led India Alliance to bring to the floor of the House a resolution that stands against the Indian Constitution and the opinion of the Supreme Court of India. The question that now is to be posed to the Congress-led India Alliance is this: after the revocation of Article 370, tribals in Jammu Kashmir received their constitutionally guaranteed rights. After the revocation of Article 370, the Dalit and OBC community in Jammu Kashmir received, after years of struggle, their constitutional rights. After the revocation of Article 370, women who were constitutionally guaranteed protection against abuse and violence received their constitutional protection. The resolution passed by the India Alliance led by the Congress Party
brings to the fore many questions. Does the Congress-led India Alliance stand against tribal rights, Dalit rights, women's rights, children's rights? Everybody in India knows that after the revocation of Article 370, deaths of civilians, the numbers came down by 80%. Incidents of violence came down by 70%. Tourism in Jammu Kashmir especially went up to a staggering figure of over 2 crore 11 lakh tourists, especially in the Kashmir Valley. Does the Congress-led India Alliance, my apologies, today stand against the economic and constitutional interests of Jammu Kashmir? Does the Congress-led India Alliance today stand against the very premise that when Prime Minister Modi offered a package of 80,000 crore rupees to the citizens of Jammu Kashmir, do they stand against the development work of the government of India for the people of Jammu Kashmir? I am today joined in my outrage by the people of India and the Karyakartas of the Bharatiya Janata Party. The Congress leadership, particularly the Gandhi family, needs to answer. Do they stand for terrorism and stand against development of Jammu and Kashmir? Do they stand for breaking of India rather than stand and abide by the Constitution of India? The question that the Congress-led leadership has to answer, particularly in the states of Jharkhand and Maharashtra, do they stand against the valor of citizens who donned uniforms of the Indian Armed Forces to protect us better? Do they stand against tribal rights, rights of Dalits, OBCs, women and children? What they seek is a special status for themselves and not the people of Jammu Kashmir. देवेंद्र पराशर। पिछले 5 सालों में 2017 के बाद इस तरह से लगातार डेवलपमेंट को लेकर ही जम्मू कश्मीर में चर्चा होती रही थी और वही नैरेटिव था। इस प्रकार की अलगाववादी चीजें जो होनी शुरू हुई है, क्या ये अफरेज आप लोग को करता है कि आगे माहौल किस तरह? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस ने जो बिगुल छेड़ा है जम्मू कश्मीर में, वो अगर विकास के संदर्भ में होता तो जम्मू कश्मीर के आवाम को उससे ज्यादा फायदा होता। मुझे लगता है कि आंतरिक सुरक्षा के विषयों पर अगर भारत की सरकार के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पर वो बल देते तो वो एक सकारात्मक राजनीति का प्रमाण होता। इस प्रकार के रेजोल्यूशन को पारित कर वो भारत के संविधान, भारत की संसद, भारत की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक अपना स्टैंड लेकर जम्मू कश्मीर के आवाम को, जो शांति प्रिय है, जो विकास पसंद है, उनको क्या संदेश देना चाहती है? मैं पुनः कहती हूं कि इंडिया अलायंस के नेता आवाम के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए स्पेशल स्टेटस चाहते हैं ताकि पुनः जम्मू कश्मीर की तिजोरी को वो लूट सके। इंडिया अलायंस ने जम्मू कश्मीर